A very good morning to all my dear students. So, today we are going to start a new chapter from your Moments book, that is The Happy Prince. So, by the name itself, I hope you would have understood that we are going to talk about a prince who is very happy, right? Before proceeding forward, I want to know from you all that have you ever judged anyone by their appearance? Yes, of course. We usually do this thing that whenever we see a person, when we see anyone who is dressed in very finest clothes, so and if that person is having an expensive watch or handbag, then what do we think? We think that they have everything, right? But similarly, if we see anyone who is not wearing good clothes, who has very shabby appearance, तो हमें क्या लगता है कि वी जज दैट पर्सन एज कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट, या फिर ये हमसे बिलो है, राइट? सो इन दिस पोएम ऑल्सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू रीड समथिंग लाइक दिस. So now let's read the story to see what happens. Actually this story is about a prince, and we are going to study that when the prince was alive he was very happy. Now let's know that after his death what happens. High above the city on a top column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword. So, the statue of a prince stood on a very high platform overlooking the city. मतलब वो इतना ज़्यादा उसकी लेंथ थी, ऊंचाई इतनी ज़्यादा कर रखी थी. एंड दिस प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस बिकॉज वेन ही वॉज अलाइव ही ऑलवेज रिमेन्ड वेरी हैप्पी. ठीक है, तो इनकी जब डेथ हुई, अ बिग स्टैच्यू ऑफ हिज, हम लोग मोस्टली लोगों की स्टैच्यू क्यों बनाते हैं? टू रिमेंबर देम, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कुछ बहुत अच्छा काम किया रहता है, तो वी ऑल हम क्या करते हैं, उनकी स्टैच्यू बनाते हैं. तो सेम here happened that a big statue of his was erected in the center of the city. क्यों? क्योंकि उनकी remembrance के लिए. So this statue of the happy prince was covered with thin layers of gold, and instead of eyeballs, मतलब उनकी आँखों को बनाने के बजाय वहाँ क्या क्या गया था, that there were two bright and shining sapphire stones. As you all know that sapphire stones are very expensive. And in the handle of his sword, sword कहते हैं इसे, as you can see. तो in the handle of this sword a bright ruby stone was placed. मतलब he was in, और इनकी जो पूरी बॉडी थी that was covered with thin leaves of fine gold. That means his full body was covered with gold. And उनकी eyes किससे थी? Eyes was covered with sapphire stones, and his sword, in his sword there was one bright ruby stone. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी ने इतना एक्सपेंसिव स्टैच्यू बनाया है तो वो पर्सन एक्चुअली डिजर्व करता था. ही वॉज अ वेरी काइंड एंड हैप्पी प्रिंस. As you all can see, this is the bird, but what is the name of this bird? One night there flew over the city a little swallow. This is a swallow, that is a very tiny bird. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. So now what happened? Swallow is a very tiny bird. Although it is not a human being, but still the writer is referring it to as he. ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि he says that all the friends of his swallow had flown away to Egypt 6 weeks ago. मतलब ये swallow कहते हैं कि उसके सारे friends 6 weeks ago Egypt चले गए थे, and this bird did not go with them. So now what happened? But later it thought of going to Egypt with his friend. So it was on the way to Egypt. पर क्या हुआ?
This bird kept on flying on its way to Egypt, and at night वो एक city में पहुंचा, and that city was the city of Happy Prince, and he wanted to stay somewhere for the night. और वो चाहते थे कि night को वो आराम से रुके, and then next morning he'll go. Where shall I put up? मतलब कि where shall I stay for the night? I hope the town has made preparations. As you all know, it is not possible if a bird is coming. No one is going to make preparations because we don't know when that bird is going to come. So ये सिर्फ ऐसे ही बोला गया है. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there again, like we studied in the last slide. I will put up there matlab I will stay here for night, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the Happy Prince. So when the bird sat in between the feet of the Happy Prince, it was surrounded with gold. And उसको क्या लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है, क्योंकि as you can see the feet, sorry, आपको अगर ये एरिया दिख पा रहा है तो इस एरिया में क्या है, उन्होंने स्वॉलो सेड कि आई एम गोइंग टू स्टे हियर, तो उसने कहा कि ये एक बहुत अच्छी जगह है इन बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, क्योंकि उसको अच्छी सी एयर भी आएगी, फ्रेश एयर. एज यू कैन सी दिस इज अ बर्ड, एंड ये क्या कर रही है, ये हैप्पी प्रिंस के लेग्स के बीच में है, बिटवीन. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. So now when the bird sat in between the feet of the Happy Prince, it was surrounded with gold, as you can see in the picture. So it thought that it had a bedroom made of gold because it was surrounded by gold all around, as you can see in the picture. So when he was about to sleep, what happened, let's see. He was putting his head under his wing. A large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. As you can see in this image, in between the legs, ये drops आ रहे हैं. तो यहाँ अब this bird was surprised because all of the sudden a drop of water fell on it, and he thought कि अभी क्योंकि रेनी सीजन भी नहीं है, ना ही बारिश हो रही है, तो how he was not able to believe this because the sky was not at all cloudy and the stars were shining. और जब वो सोच ही रहा था ऐसा, तो एक और ड्रॉप उसके ऊपर फिर गिरा. दिस इज द सिटी ऑफ हैप्पी प्रिंस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. इस हैप्पी प्रिंस की जो स्टैच्यू है इतने ऊपर बनाया हुआ था सो दैट इट कुड बी विजिबल टू एवरीवन ऑल अराउंड. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. So now the swallow thought that the statue was useless. उसको ऐसे क्यों लगा कि statue useless है? Because it was not able to protect it from rain. क्योंकि जब वो उसके नीचे उसने shelter लिया था तो उसे लगा था कि it is going to protect him. But क्योंकि उसको वो बारिश की बूंदें आ रही थी, so he thought he should not sleep under the statue. I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. तो उसको लगा कि मुझे कुछ और अपने लिए शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, और वो सोच रहा था उड़ने के लिए. But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw. What did he see? So जैसे उसने सोचा कि he is going to move away from there because the statue was not able to protect him from the rain, तो क्या हुआ, अ थर्ड ड्रॉप फेल ऑन हिम एंड व्हेन ही लुक्ड अप, तो उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. पिटी का मतलब होता है दया, उसे दया आ गई. वेन एवर इट इज़ ये कॉमन ह्यूमन नेचर होता है, वेन एवर वी सी एनीबडी क्राइंग तो हमें उन पर दया आ जाती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम और हर. सो व्हाट डिड द स्वॉलो आस्क, हु आर यू, ही सेड.
And then the prince replied, I am the happy prince. So here the statue was filled, the happy prince statue was filled with tears. और ये जो drops of water थे वो क्या थे जो उसके ऊपर swallow के ऊपर गिर रहे थे, वो उसके tears थे which was falling off the statue's golden cheeks. And जब swallow ने हैप्पी प्रिंस के फेस में देखा तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ पिटी, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा दया आई. तो उसने जब उससे पूछा कि व्हाट हु आर यू, तो उसने क्या रिप्लाई दिया, दैट आई एम द हैप्पी प्रिंस. वाई आर यू वीपिंग देन, asked the swallow. You have quite drenched me. Drenched का मतलब होता है soaked me with water. तो swallow thought that the statue was of the happy prince but it was crying, क्योंकि आपको नेम से ही पता चल रहा है happy prince मतलब एक person who is happy. तो वो यही सोच रहा था कि इसका नाम तो happy prince है but he is crying. So the bird now he asked, the bird asked the statue that why it was crying, and it also said that you have soaked me with tears, मतलब तुमने मुझे इतना ज़्यादा गीला कर दिया है. नाउ अब हैप्पी प्रिंस का क्या रिप्लाई है हम ये देखते हैं. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. Sorrow मतलब sadness या कोई भी दुख allowed नहीं है अंदर घुसना. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. So now the happy prince, he narrated his story to the swallow and he said that when he was alive, जब वो जिंदा थे तो उनका एक human heart था. Human heart का मतलब होता है एक heart जो beat करता है, तो जो alive रहता है. तो at that time he was not aware what tears were, क्योंकि उनको क्यों नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कभी पैलेस में किसी भी दुख या किसी भी ऐसी चीज़ को एंटर होने ही नहीं दिया जिसमें हैप्पीनेस ना हो. तो हिज पैलेस वॉज कवर्ड विज ऑल अराउंड विथ हैप्पीनेस एंड ऑल द पीपल हु यूज टू वर्क इन हिज कोर्ट उनको हैप्पी प्रिंस बुलाया करते थे. क्यों? बिकॉज वो हमेशा हैप्पी रहते थे एंड ही हैड नॉट सीन सॉरो एट ऑल. तो वो बताते हैं दैट he lived happily and died in happiness only. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery का मतलब sadness of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. So now he's saying that he was not aware what tears were because उसने उन्हें कभी नहीं देखी. तो वो बता रहे हैं कि now when he was dead, जब उनकी डेथ हो गई थी तो लोगों ने उनको इतना ऊपर उनका स्टैचू बना दिया था दैट वो ऊपर से पूरा होल सिटी को देख सकते थे और उसकी अगलीनेस, जो सिटी में लोगों ने अगलीनेस फैला रखी थी वो देख सकते थे. ही कुड सी देयर वर सो मेनी पीपल लिविंग इन मिजरी, मतलब ऐसे कई लोग थे जो बहुत सैडनेस में रह रहे थे. ऐसे कई लोग थे हु वाज देयर वाज अ लैक ऑफ फूड, हंगर, मनी, होमलेसनेस. तो नाउ ही सेइंग कि नाउ व्हेन द स्टैच्यूज हार्ट, क्योंकि उनका हार्ट एक लीड से बना है, मतलब एक मेटल से बना है जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं है जिसके पास, ठीक है. एंड व्हेन इट सॉ द ऑल द सैडनेस, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू मूव. वो ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते थे, बट उनके पास एक ही ऑप्शन था. वो क्या था? दैट टू बिकम सैड एंड वीप, मतलब वो दुखी हो जाते थे ये सारी चीज़ें देख के, और वीप का मतलब रोते थे. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. So when the happy prince was telling his sad story, तो swallow कुछ सोच रहा था and he was thinking, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. So now he's saying कि बहुत दूर एक
स्ट्रीट है जहाँ एक कोई बहुत पुअर लोग रहते हैं. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn. She has coarse red hands. Coarse मतलब बहुत rough hands. Rough hands usually कब होते हैं? अगर आप काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग करें या कुछ भी ऐसा हार्ड काम करें तो आप अगर अपने हाथ को देखेंगे you will find your hands are very rough. All pricked by the needle, for she is a seamstress. ऑल प्रिक्ड बाय द निडल मतलब जो पर्सन बहुत निडल का काम करता है उसके हाथ में कुछ निशान पड़ जाते हैं. फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस का मतलब होता है अ वुमेन हु मेक्स अ लिविंग बाय सीविंग, मतलब जो सिलने का काम करते हैं. तो नाउ द स्टैच्यू कंटिन्यूड इट्स स्टोरी. इट स्पोक इन अ वेरी म्यूजिकल वॉइस. और वो बताते हैं कि द विंडो ऑफ एक पुअर वुमेन के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि उस पुअर वुमेन का घर ओपन है एंड इट कुड सी थ्रू द विंडो दैट मतलब हैप्पी प्रिंस ये देख सकते थे दैट शी वॉज सिटिंग नियर द टेबल एंड हर फेस वॉज थिन एंड शी वॉज वेरी टायर्ड. और उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा रफ थे एंड इट हैड बिकम रेड. क्यों रेड हुए? बाय बिकॉज शी हैड बीन प्रिक्ड अप बाय द नीडल. प्रिक्ड अप मतलब कई बार आप अगर अपने कपड़े सिलने बैठते हैं तो कई बार आपकी नीडल लग जाती है. सो दैट वॉज द रीज़न. और उन्होंने क्या बताया कि द वुमेन इज़ अ सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस का मतलब जो टेलर होते हैं, वुमेन टेलर. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. अब इसका मतलब होता है कि वुमेन क्या कर रही थी? वुमेन कुछ फ्लावर्स एक गाउन में क्वीन की मेड के लिए गाउन में फ्लावर्स एम्ब्रॉयड कर रही थी. हु वुड वॉक अलॉन्ग, जो मतलब कोई फंक्शन है क्वीन का उसके लिए उसकी मेड के लिए वो काम कर रही थी. इन अ बेड in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. As you all know, जब आपको फीवर होता है तो आपको डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं that you have to eat plenty and plenty of fruits. So now he is saying कि this lady had a little child who was not well and he was suffering from fever and he was asking his mom to give him oranges. His mother had nothing to give him but river water, so he is crying. क्योंकि उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, she had no money, तो उसके पास पानी के अलावा देने के अलावा अपने लिटिल बॉय को कुछ नहीं था. That is the reason the little boy was crying. Swallow, swallow, little swallow. Why will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. So now हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया, हैप्पी प्रिंस की जो स्टैच्यू है उसने स्वॉलो को रिक्वेस्ट किया दैट टेक आउट द रूबी स्टोन फ्रॉम माई हैंडल ऑफ इट्स स्वॉर्ड. अगर आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि इसकी जो स्वॉर्ड है, जो जिसे तलवार कहते हैं, उसमें एक रूबी स्टोन था. तो अब ये हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है किसे? उस बर्ड को कि ये इस रूबी स्टोन को मेरे हैंडल से निकाल के गिव इट टू दैट लेडी. ठीक है. और उन्होंने ये भी बताया कि ही कैन नॉट डू दिस वर्क. क्यों? बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट मूव. क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म में थे एंड ही कैन नॉट मूव, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे. दैट इज़ द रीज़न वाई ही वॉज रिक्वेस्टिंग दैट बर्ड कि मेरे स्वॉर्ड से एक रूबी निकाल के उस लेडी को दे के आ जाओ, सो दैट वो उस स्वॉर्ड को बेच के अपने बच्चे के लिए कुछ खाना ले पाए. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The happy prince asked. So now, अब जो वो bird थी, he was not ready, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं. कहाँ? इजिप्ट में. बिकॉज एज यू ऑल नो, क्योंकि हम पहले भी बता रहे थे कि हमने पढ़ा था कि दिस बर्ड वॉन्टेड टू गो टू इजिप्ट, बट क्योंकि रात हो चुकी थी, दैट वॉज द रीज़न वाई उसे एक जब स्टैचू मिला तो स्टैचू के नीचे ही थॉट टू टेक द शेल्टर.
The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and mother so sad, he said. तो अब हैप्पी प्रिंस क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक नाइट के लिए मेरे पास रुक जाओ, मेरा मैसेंजर का काम करो. मैसेंजर का मतलब वट एवर आई से आई वॉन्ट यू टू डू इट, बिकॉज आई कैन सी दैट द बॉय इज सो थर्स्टी, मतलब उसको बहुत प्यास लगी, उसे बहुत भूख लगी और उसकी मदर सैड है. वाई इज इज मदर सैड? क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ मांगें दैट आई वॉन्ट this or this and if your parents are unable to give it to you तो obviously they become sad. वो sad क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उन्हें कुछ मांगा and they are not able to fulfill your wish, तो even they eventually they become sad. So that is the reason why mother भी sad थी, क्योंकि उसका बच्चा उससे खाना मांग रहा था और उनके पास वो fruits नहीं थे देने के लिए. I don't think I like boys, answered the swallow. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. तो अब वो बर्ड रिप्लाई क्या देती है कि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है. बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस. क्योंकि अब प्रिंस काफ़ी ज़्यादा सैड थे और वो बहुत सैड टोन में उस बर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट आई वॉन्ट यू टू स्टे फॉर जस्ट वन नाइट, मेरे मैसेंजर की तरह रहो. तो और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो उसने द बर्ड एग्रीड एंड द प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. मतलब उस बर्ड ने क्या किया, जैसे प्रिंस ने कहा था कि मेरे स्वॉर्ड से वो रूबी निकाल के देन उसको दे के आओ, तो उसने वही किया, वो रूबी निकाली. He passed by the cathedral tower, मतलब चर्च, where the white marble angels were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. मतलब नाउ इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ उस बर्ड्स वहाँ से पहले वो चर्च के थ्रू गया एंड देन he passed on various places. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I've ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. अब एक लड़की अपने बालकनी में आई एंड शी वॉज टॉकिंग टू हिज लवर और वो क्या बता रही थी कि आई होप कि मेरी जो वो फ्लावर वाली ड्रेस थी, आई होप कि वो seamstress ने रेडी कर ली थी. एज यू ऑल नो seamstress मैंने इससे पहले भी बताया था, जो लेडीज टेलर होते हैं उन्हें कहते हैं. और वो भी ये क्या कह रही है कि दे आर सो लेजी. बट द ट्रुथ इज दे आर नॉट लेजी बट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, दैट इज़ द रीज़न वाई वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast. Lanterns होती है जो लैंटर्न्स जो आपने यूजुअली अपनी दिवाली में भी देखा था. आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी टर्म टू यूज़. दिवाली में आप लैंटर्न्स जलाते हैं, उसे लैंटर्न्स कहते हैं. ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इट. सो नाउ इसमें बीच में लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया गया, डिस्क्राइब किया गया कि स्वॉलो कैसे कैसे किस किस रास्ते आया था. एंड देन एट लास्ट ही रीच द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन मतलब अंदर उसने देखा. एंड व्हाट डिड ही सी? द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed and his mother had fallen asleep. She was tired. उसने क्या देखा कि द बॉय वो क्या कर रहा है, वो टॉस कर रहा है मतलब क्योंकि उसे बुखार था एंड ही हैड नथिंग टू ईट. तो व्हेन यू डू, यूजुअली आपको रात में भी ऐसी फीलिंग आई होगी, व्हेन यू डोंट ईट तो रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, तो आप करवटें बदलते हो. तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द बॉय. ही वाज टॉसिंग मतलब मूविंग हियर एंड देयर क्योंकि ही वाज हंग्री. और उसकी मदर क्या हो गई थी, उसकी मदर हैड फॉलन अस्लीप मतलब उसकी मदर सो गई थी. क्यों? बिकॉज शी वाज सो टायर्ड. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Thimble होता है which is usually ये टेलर्स पहनते हैं to protect the finger. क्योंकि कई बार मैंने क्या बताया था, निडल से अगर आप काम करते हैं तो वो आपको निडल
लग जाती है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द टेलर्स वेयर थिम्बल. थिम्बल का मतलब होता है जिससे आपको निडल से बच जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है, तो उसने स्वॉलो ने क्या सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. क्यों? क्योंकि वुमेन वो काम करते करते सो गई थी एंड अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी उसकी आँख खुलेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी, वो निडल उठा के काम करेगी. और जब वो निडल उठाएगी तो उसके बगल में उसने क्या रखा था, रूबी. रूबी इसलिए रखा था सो दैट वुमेन सबसे पहले उस रूबी को देख पाए. So today we are just going to cover half of the part in this video, and tomorrow I'm going to upload a new video in which we are going to cover next rest of the story. I hope this story is clear to you till here, and if it is not, then I'll advise you to go through the video again so that it will be clear to you. Till then, bye bye students.